Hi everyone, this is Antra with Desis.live and I'm here to rant about ये रिश्ता क्या कहलाता है. As you guys know, मैं column लिखा करती थी, but I have made a vow to myself and my readers that I will not write till this incest wedding drama is out of the way, and it has been freaking 40 days now since they have started this drama. You're counting? I am counting. Believe me, I am counting. And I know, and a lot of people know, a lot of people from the fandom have done complaints with IBF, the broadcasting forum, and they have received thousands and thousands of complaints about this track and about how Manjari, absolutely this wild woman, she screams, curses, and blames Akshara for everything under the sun, from COVID to her broken heel. और ये सारी कंप्लेंट्स गई है आईबीएफ के पास. सो फैंडम, इफ यू गाइज आर लिसनिंग, आप लोग ये मत समझिए कि आपकी वॉइस नहीं जाती है. प्लीज यूज द ऑफिशियल चैनल and file a complaint about things that you think are either legally or morally incorrect and should not be on the TV. I know. We also wrote an article about this. We also wrote a couple of articles about the entire toxicity that is being shown, right? Yeah. And please use your voices, please use your words. आप ट्विटर पे आप कर रहे हैं, आप टैग करिए IBF इंडिया को. There's a form that I have circulated on my account. It's pinned there. Use that form. अगर आपको किसी plot से, if you think, and not just for ये रिश्ता, for any of the show, अगर if they get a lot of complaints, they go to the makers, they go to the channel and question them that what are you showing. They actually review your complaints. I know it from my sources that they do it. So please do not think कि आपकी आवाज नहीं पहुंचती है उन तक पहुंचती है. पर आप सही चैनल से जाओ. मेकर्स भले ही आपकी आवाज को इग्नोर कर दे, but if you go through the proper channels, they will listen to you. And ये रिश्ता को भी पड़ी है. They have gotten, because of this घटिया track and so many complaints that reached them. How can somebody write such a track? I don't understand what's going on in their heads. There are 50,000 ways in which they could have bought these two together. I don't know what is this. This trend started with गुम है किसी के प्यार में, where देवर भाभी marriage दिखा के they showed that thing and it worked. So उनको लगता है अब हर शो में ये दिखाते हैं तो ये काम करेगा. It does not work यार. It's absolutely disgusting. And मतलब मुझे नहीं पता उस शो में कैसे चल गया, बट यू कैन नॉट शो इट इन रिश्ता. रिश्ता की ऑडियंस अलग है. यू आर डीकेपी, तुम अनुपमा बनाते हो, तुम वुमेन एम्पावरमेंट पे लेक्चर्स देते हो अपनी माँ से. तुम 20-20 मिनट वो पढ़ती है, भाषण पढ़ती है, और अपने दूसरे शो में तुम ये बकवास दिखा रहे हो कि एक लड़की जो है अपने एक्स जीजा स्लैश जेठ से शादी करने के लिए मरे जा रही है. वो एक पेंडेंट है जो उसने अपनी वाइफ के लिए लिया था, वो उसने उसके हाथ से छीन लिया, थिंकिंग दैट ही गॉट इट फॉर मी. तेरे को 6 साल में अंदाजा नहीं हुआ इस लड़के ने तेरे को पब्लिकली कितने बार रिजेक्ट किया है? तुझे क्यों लगता है कि उसने लव पेंडेंट गिफ्ट करेगा जिस पेंडेंट में लव लिखा है, और वो तेरे को सामने से बोल के रख रहा है कि ये शादी में डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम मी, आई एम जस्ट मैरिंग टू गिव अ नेम, become a father for your daughter, things will not change between us. But this woman is so delusional, thinking, बोलती है और जाके अपनी बहन को वार्न कर रही है. शी इज बैक टू गेम्स अगेन. जाके बोलती है कि अभिमन्यु तू चली जा उदयपुर छोड़ के. 6 years later this woman is on the same page कि उदयपुर छोड़ के चली जा. वो बचपन से उसका एक ही वो है, अक्षरा उदयपुर छोड़ के चली जा, तू नहीं रहती तो मेरी लाइफ में सब सही होता है, उदयपुर छोड़ के चली जा. आई एम सो हैप्पी अक्षरा फाइनली आंसर्ड हर बैक एंड टोल्ड हर लाइक, लिसन, तू बच्ची थी और तब ये सब मैं सह लेती थी, बट यू आर अ मॉम ना, यू आर फ्रिकिंग मॉम. ओन अप टू योर मिस्टेक. तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम किस आदमी से शादी कर रहे हो? You don't see the problem in that marriage. तुम्हें दिख नहीं रहा you're marrying the wrong man and you're asking. She says that to her. She literally said like, तुम्हारी problem ये है कि तुम बचपन से और आज भी तुम वैसी की वैसी हो. You have become a mom but you have not grown up. तुम अभी भी you're trying to find someone to pin the blames of what goes on wrong in your life. You try to find someone to pin blame of that. What went wrong in my life is because of this person. You are ready to blame, but you're never ready to introspect and see what did I do wrong. Do you not see कि और बोलती है कि
इतने साल पहले तूने अभिमन्यु को मुझसे छीना था? टू दैट क्वेश्चन अभिमन्यु का डायलॉग है, मैं तुम्हारा था कब? पागल औरत, पागल औरत, तुझे मंदिर में सबके सामने इसने बेइज्जत किया था कि अक्षरा ने मुझे तुमसे छीना है, अक्षरा ने मुझे तुमसे छीना है, मैं तुम्हारा था कब? तुझे शर्म नहीं आती? तो फिर लोग कैसे छीनते कैसे हैं? आर पीपल थिंग्स, मतलब ये क्या नया, ये डायलॉग कैसे? मुझे he actually said that to her husband as well, मुझे अक्षरा वापस दे दो। अक्षरा क्या है? बिस्किट का डब्बा है। लॉलीपॉप, लॉलीपॉप, वो बच्चा लॉलीपॉप छीनता है ना। so happy that Abhimanyu started realizing his mistake. It is, I'm sorry, it is 70 days too late. No, I don't even know, I've lost track. 25th December, 26th December is when you aired that White Day horrible episode. It was so triggering. I got an anxiety attack that night and I'm not afraid to admit it. I got it. मैं रात को सो नहीं पाई. It was Christmas Eve for her. हम सो नहीं पाए. Me and my friends, we had to leave Twitter. There's a woman I know who has seen this in a family. There are women I know who have gone through miscarriage, and the treatment that you showed on that day, it triggered so many women. It triggered so many women. And it took you freaking January, February, March 15th to address this issue that this man wronged his wife who had just miscarried. It took you this long. I'm happy he's realizing now. I'm happy that Akshara said him, but I'm just shocked that you're the character, the main lead character. It took 6 years for him to realize that what he did on that day was wrong. इसको realization ही नहीं था 6 साल से, जब तक अक्षरा ने इसको सुनाया नहीं कि भाई तूने उस दिन मेरे साथ गलत किया था। ये क्या, क्योंकि वो अपनी माँ की छत्र छाया में ना, उसकी माँ जो है वो उसको दूध पीता बच्चा समझती है ना, कि एक चमची दूध देगी फूक मार मार के तब जाके उसका अभिमन्यु पिएगा। उसकी माँ तो ये भी सोचती है। क्या अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड है, मुझे नहीं पता वो कट क्यों नहीं हो रहा है, इतना साल हो गया है, मुझे नहीं पता ये क्यों इसकी माँ का वो बना श्रवण कुमार बन के फिरता है। इसको दिखता नहीं है इसकी मम्मी कितनी टॉक्सिक है। हम सबको तो डे वन से दिख रहा है। मैं तो उस औरत को डे वन से हेट करती हूँ। मैं देख के पहचान जाती हूँ पनौती कैरेक्टर्स जो होते हैं ना शो में, इस टाइप के कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, जो इंट्रोड्यूस ही ऐसे होते हैं कि मुझे मेरे बेटे की शादी करानी है, उन कैरेक्टर्स को मैं तुरंत पकड़ लेती हूँ कि ये नाटक करेगी, और वो कर रही है वो औरत। उसका मेमोरी लॉस हुआ है, और राइटर्स को क्या लगता है हम सबका मेमोरी लॉस हुआ है, हम भूल गए हैं आरोही कैसी थी? नो, हमने दिसंबर तक देखा है, हमारे पास दिमाग है। तुम्हारे कैरेक्टर्स के जैसा बेवकूफ नहीं है, हमारे ब्रेन सेल्स काम करते हैं। हमें याद है कि आरोही ने क्या क्या क्राइम्स किए थे, और उन सारे क्राइम्स को तुमने छुपा दिया या व्हाइट वॉश कर दिया, और अभी उसको साध्वी बना के प्रेजेंट करते हो, और तुम लोग सोचते हो कि बाकी बिरला फैमिलीज की तरह हम भी उसके चरण धो के पियेंगे। आरोही ऐसी है, आरोही मेरी बेटी है, आरोही ऐसी है। नहीं, तुम्हें लगता है हम भूल गए हैं दैट आरोही was actually dying to marry अभिमन्यु। उसने क्या क्या झूठ बोला, क्या क्या गलतियां की, क्या क्या क्राइम्स किए उसने टू मैरी अभिमन्यु, और अभिमन्यु ने उसे डंप किया था। He always loved अक्षरा। तुम ये डायलॉग कैसे देते हो? आरोही से तो बुलवाते हो, तुम मंजरी से ये डायलॉग कैसे बुलवाते हो कि ये पहले भी अभिमन्यु और आरोही के बीच में आई? तुम अक्षरा की फैमिली, तुम गोयनका से ये डायलॉग कैसे बुलवाते हो? आप लोग कितनी बार अक्षरा के लिए आरोही की खुशियों की बलि चढ़ाएंगे? Are you freaking kidding me? Who said that? फैमिली, उस लड़की की अपनी फैमिली उसके साथ खड़ी नहीं हो सकती। तुम क्या दिखा रहे हो? ये लेगेसी शो है, यहाँ पे फैमिली की बॉन्डिंग दिखाई जाती है। इस पूरी गोरिल्ला फैमिली में बिरला को तो छोड़ दो, गोयनकाज में भी एक आदमी रूट करने लायक नहीं। इसका अपना सगा भाई जिसको बचाने के लिए दिस वुमन रिस्क एवरीथिंग, क्रिमिनल केस लग जा रहा था, मरने वाला था ये, इसको बचाने के लिए इसने कितना कुछ किया। इसका भाई लीप के बाद इसको मेमोरी लॉस हो गया, ये बस सीरत का बेटा बन के रह गया। आरोही के कंधे पे हाथ रख के उसको कंसोल करते हैं कि अभिमन्यु का एक्सीडेंट हो गया। इसकी सगी बहन को वो अभिमन्यु की माँ आरोही के साथ कैरेक्टर असैसिनेट कर रही है, हॉस्पिटल में बोल रही है तू अपशगुनी है, तेरे वजह से लोग मर जाते हैं, तू मेरे बेटे को खा जाएगी, और ये खड़ा होके सुन रहा है। ऐसे तो बड़ा हीरो बन के फिरता है। क्या कैरेक्टर है, क्या फैमिली है, क्या दिखाते हो? आप लोग सोचते हो जो ऑडियंस देखते हैं उसके दिमाग में क्या फर्क पड़ता है? आप लोग समझते हो लेडीज देखती है घर में, योर प्राइमरी व्यूअर्स आर लेडीज,
they are ladies who have gone through this kind of horrible shit. कभी ना कभी किसी ना किसी ने उनके साथ इस तरह से बुरा बिहेव किया. Somebody have shouted their guts at them and they get frozen and they can't say things. आप समझते हो उनको क्या ट्रॉमा होता है? आप समझते हो वो लोग जब ये देखते हैं, वो लोग उस टाइम पे तो देख लेते हैं, 4 घंटे बाद उनके दिमाग में ये चीज घूमती रहती है. आप समझते हो कि वो लोग रोने लगते हैं. I could not take it. मैंने देखा and I was crying the whole night. It's not okay. It's not okay to show this kind of regressive things. I'm sorry. And I'm happy that Abhimanyu is realizing things, and I'm happy that you have a few characters who have some redeemable qualities. You have started to redeem your male lead. You have a cameo who is thankfully has a good character. वो realize कर रहा है that I have to back off. He's not doing anything creepy or questionable. I'm happy that you have a few good characters left on the show, but please, the majority of your characters are shit and they are regressive and the thought process is regressive. अक्षरा सिंघानिया का मिसकैरेज हुआ था 12 साल पहले. उसकी पूरी फैमिली, ससुराल, मायका, एवरीबडी केम टुगेदर एंड सपोर्टेड हर. अक्षरा गोयनका का मिसकैरेज हुआ है उस शो में, पता नहीं कितने 70 साल हो गए उसके बाद, एंड दिस फैमिली थ्रू हर आउट. क्या दिखा रहे हो आप लोग? टाइम पीछे ट्रैवल कर रहे हैं. When are you blamed for somebody's death? Abhimanyu woke up to it, but please, I am waiting for Abhimanyu to give this shut up call to everybody. पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के ये बात बोले, और सबसे पहले तो अपनी माँ को बोले. वो खुद एक औरत है, वो बोलती है मेरा बेटा चला गया. कोई सामने से बोलता है कि इनका भी दर्द था, she also lost her kid, तो वो बोलती है कि नहीं, मेरे बेटे का दर्द ज्यादा, मेरा और मेरे बेटे का दर्द ज्यादा है. वो दूसरी औरत जिसका एक्चुअल फिजिकल मिसकैरेज है, उसको कुछ नहीं लगा. What is this thought process? What is this? कौन लिखता है ये 2023 की स्क्रिप्ट है? Are you crazy? After all of this, if Akshara's character turns around and calls her ma even once, I swear I'm gonna slap somebody. I was so angry at her. I know I stopped reviewing because this stupid cringe shit incest wedding started. I was like, मुझे करना ही नहीं है. I don't want to see. I'm sorry, Karishma Sawant, you please enroll yourself in an acting school. Please learn to give appropriate expression. She needs another actor to really enact what she's or get someone to put subtitles. She needs or subtitle to her. She needs emotions. She needs subtitles to her emotions. हर सीन में ये एक्सप्रेशन देना is not, मुझे नहीं समझ में आता. I'm sorry, मुझे नहीं समझ में आता. Maybe I'm stupid and maybe the rest of the Twitter audience who watches it, they are also stupid. Maybe घर में जो TRP आंटीज देखती है वो भी stupid है, क्योंकि जब तुम्हारा स्क्रीन स्पेस बढ़ता है तो वो लोग चैनल चेंज कर देती है. ये हमें TRP में दिख जाता है. हम लोग गधे नहीं है, वो लोग भी गधी नहीं है. तो I'm sorry, मेकर्स को पता नहीं तुमसे क्या प्यार है, चैनल को तुमसे क्या प्यार है, बट प्लीज इतना प्यार है तो थोड़ा रिस्पेक्ट करो. Enroll yourself in an acting school and learn to give proper expressions. You know, ये करना, ये मुंह कबड्डी करना बंद करो. Please, we don't want to see your teeth, we don't want to see your lips, we want to see all rest of your face also acting. ठीक है, this is not okay. हम नहीं झेल पाते. हमारे आंखों से खून बहता है. I'm sorry. मेरे कान से खून बहता है, मेरे आंखों से खून बहता है. दैट शो मैं क्यों देखती हूँ, ये शो क्योंकि मैं छोड़ नहीं पाती. मैं सच बता रही हूँ, मैं छोड़ नहीं पाती. मैंने देखना छोड़ दिया. अंतरा, I left watching ये रिश्ता since December, January, February, March. I've not watched a single episode. मैं सारे तू तो 13 साल से देख रही है, right? You're watching it from 13 साल से I've been watching that show, but अब वो इतना टॉक्सिक हो गया ना मीरा के it's beyond my limit. मतलब देवर भाभी की शादी पता है कहाँ दिखाते थे? I'll tell you. You know this movie हम आपके है कौन, right? उसमें दिखाया था कि उसकी डेथ हो जाती है एंड देन दे डिसाइड कि निशा के लिए वो उसके जीजा जी से उसकी शादी करेंगे. एंड वो भी हुई नहीं थी, फॉर गॉड सेक, वो हुई नहीं थी क्योंकि उनको पता चल रहा था कि प्रेम लव निशा. बट यहाँ पे तो अलग ही, मतलब ननंद और मतलब सॉरी देवर और भाभी, मतलब क्या कनेक्शन होता है? मतलब अरे देखो, मैं मना नहीं करती, मुझे पता है नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में ये करवाते हैं कि एक भाई मर जाता है तो दूसरे, बट द पॉइंट इज तुमने 6 साल तक ये नहीं दिखाया.
You showed 6 साल तक they are living in a joint family. बच्ची को पता है that this person is not my dad, he is my बड़े पापा. Rather than बच्ची एक दिन जिद करती है कि मुझे असली पापा चाहिए, मुझे पॉपी नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए. उस बच्ची को समझाने के बजाय you give in to that shit. You give in to whims of a 5-year-old. Like seriously, ये क्या पेरेंटिंग कर रहे हो तुम? क्या दिखाना चाह रहे हो? पहले मम्मी के इमोशनल ड्रामा पे शादी होती थी, अब बेटी के इमोशनल ड्रामा पे शादी हो रही है. बेटी भी That नहीं, is the only transition. भतीजी के इमोशनल ड्रामा में आके शादी कर. भतीजी. हाँ, बेटी मैं नहीं बोलूंगी उसको. It's very cringe like how he calls her बेटी was like, please यार, you have a double relationship with this Arohi character. She's not just your भाभी, she's the sister of your ex-wife. चलो, नील की डेथ हो गई, उसके बाद समझ में आता था कि थोड़े टाइम तक वो ब्लेम गेम, जैसे कार्तिक नायरा के टाइम भी शुभम की डेथ के लिए नायरा वाज ब्लेम्ड, बट इवेंचुअली दैट टर्न्ड आउट टू बी इन देयर फेवर, क्योंकि कार्तिक ने रियलाइज कर लिया एंड दे गॉट बैक टुगेदर. उसमें ना ननंद भाभी वाभी कुछ नहीं आया था, थैंकफुली, थैंक गॉड कुछ नहीं आया था, वरना मैंने मेकअप से टमाटर मारने थे. शुरू कर दिया है ना ये घूमे किसी के प्यार में, that every show goes towards, they try to tease with it, and I'm so happy. जो घूमे किसी के प्यार में, I don't know, either the makers don't care or the audience don't know the proper, I know they do a lot of trends, but they just go whatever they want to do. Their makers are probably more besharam than DKP, but I'm so happy that these IBF complaints about this thing, because people reached out. They were like, even though ये होता है, it happens in society that when when a brother dies, either the younger or the older unmarried brother marries the widow to give the child a name, and it happens in very like it happens in some northern like states of India. Where I am from, it does not, like I'm from the east, I'm from Bengal, हमारे यहाँ नहीं होता है, so it was very weird for me. And then I found out that it is actually prohibited under Hindu Marriage Act. It is just that they don't ever file an official complaint about it, so these marriages just go ahead and happen. But ये allowed ही नहीं है legally. तो आप क्या दिखा रहे हो टीवी शो में? And the point is कि this woman is तुम्हारे एक्स की बहन है यार, सिर्फ तुम्हारे भाई की बीवी नहीं है, तुम्हारे एक्स की बहन है. एंड दिस लेडी ये पूजा कर रही है, अपने पति को भूल गई है इतने दिन से, मतलब शी इज रिमेम्बरिंग हर ब्रोकन एंगेजमेंट विद अभिमन्यु फ्रॉम 6 whatever how long it was ago. अब वो पूजा में बैठी है, rather than remembering कि बोल रही थी अपनी बेटी के लिए शादी करी हो, this woman is remembering कि oh how I was engaged to Abhimanyu before, and touching that love pendant and wearing that love pendant, और ऐसे पकड़ती है जैसे मंगलसूत्र. It's so disgusting. When watch that, it's okay if you want to move out. Okay, I'm not single woman out there, single mothers out there. It's okay if you want to move on. There's nothing wrong with that. But please move on with the right guy, not the किसी पे दोहरे नहीं डालती यार. सिंगल औरतें, सिंगल मदर्स होती हैं, बट वो किसी और के पति पे से दोहरे ओरे नहीं डालती. दिस इज सम नेक्स्ट लेवल रिडिकुलस शिट. कि मतलब 10 तुम्हारा पति चला गया. Please choose someone who is not your Jade and the ex-husband of your sister and has dumped you twice publicly before. Please. आज देखा धूम में किसी के प्यार में they have a new lead. Yes, मैं वही बोल रही थी. Sai got a new lead. I don't know how long he's going to stay. I don't know. What's the name of that character, that actor? Harshad Arora. Harshad Arora. Yeah. Yeah, he. जो भी है, I'm just fed up with what they were showing. This was supposed to be a track about the leads and their baby and how Abhimanyu realizes and redeems and begs for. It was Abhimanyu's redemption track, and it's become some other drama. Abhimanyu's redemption track, and January 31st, the show was going very well. Kasoli track happened. It was very good audience reception. TRPs were skyrocketing very high. And then as soon as he came back to Udaipur, they started this Ghatia angle of trying to set up this incest thing, and TRPs dropped.
I'm so happy that they think aunties are stupid, but no, TV watching audience is not stupid. They will not digest anything in the name of entertainment. ड्रॉप किया, इनको वापस लेके आ गए, इनको प्री लीप वाली औकात पे लेके आ गए, तो बहुत अच्छा हुआ. फिर इनको सबक मिला, इनको IBF से कंप्लेन्स आया, बंद किया वो क्रिंज, तो TRP अपने आप राइज होगा. भाई शो लीड्स के लिए देखते हैं कि हम ये फालतू वैम्प टर्न्ड साध्वी कैरेक्टर का ग्लोरिफिकेशन देखने के लिए देख रहे हैं? मुझे कौन है लगता है भाई, कि कौन है? मोन्टाज बदलना पड़ेगा, आरोही और अभिमन्यु को लेके आ जाएंगे क्या मोन्टाज पे अब सीधा? वो तो आ गई ऑलरेडी मोन्टाज पे ना, वो और अभिनव को क्या मोन्टाज पे, Is it? Oh my चारों God, I don't know this show anymore. मतलब फेब्रुअरी में वही किया ना. फर्स्ट इट वाज मोन्टाज अबाउट लाइक अक्षरा, अभिमन्यु एंड अबीर, देयर किड. ये टीम हाँ. की स्टोरी है, यही तो देखना है आंटीज को. फेब्रुअरी में दे स्टार्टेड दिस रेक्टेंगल एंड वो एक बड़ा सा प्रोमो आया लीप का, मतलब प्रोमो विद दैट दे लॉन्च दैट रेक्टेंगल, और पूरा मोन्टाज बदल दिया. मोन्टाज में नाउ इट्स अक्षरा, अभिमन्यु, अभिनव एंड आरोही, 4 लोग हैं. Wow. बच्चा गायब, तो बच्चा क्यों लाए तुम? बच्चा अगर तुम्हें रखना नहीं है मोन्टाज पे तो इट्स सो Honestly, वेदिका और कार्तिक की शादी का जो दिखाया था ना, फॉर गॉड सेक, दे आर पेरेंट्स यार. ये कोई नॉर्मल लीप नहीं है, दे आर पेरेंट्स टू किड्स. द किड इज, दे आर मेकिंग द किड बी एक्साइटेड फॉर द वेडिंग ऑफ हिज बायोलॉजिकल फादर विथ हिज मासी. वो बोल रहे हैं मुझे डॉकमैन और मासी की शादी में डांस करना, शाही पनीर खाने. क्या डायलॉग देते हो? आती है तुम्हें? ऑनेस्टली जब कार्तिक और वेदिका का दिखाया था ना, बैक देन, तब बहुत बैकलैश मिला था, सब मिला था, बट दैट वाज ओनली 3 months, बिकॉज 3 months के बाद उनको इतनी गालियां मिली ना, डीके से हैरान परेशान हो गए थे. उनको IVF से कंप्लेन्स मिली, हर पोर्टल, हर सोर्स, हमने कुछ नहीं छोड़ा था उसकी कंप्लेन करने के लिए, वो वेदिका चुड़ैल की. बट ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, अगर अब जाके वो ट्रैक देखती ना, तो शायद इतना बेरेबल हो जाता जितना ये तो बिल्कुल भी -% भी बेरेबल नहीं है. I mean, that was... Vedika was an unrelated outsider. This person is हाँ. literally family. Exactly. ये क्या तुम्हें मतलब क्रॉस पॉलिनेट भी नहीं है, तुम्हें इन पॉलिनेट क्या है तुम्हारा? पता नहीं क्या कर रहे हैं, इधर से उठा के इधर, इधर से उठा के इधर, इधर से उठा के इधर. And the two families are agreeing. कोई दीन ईमान नहीं है इनका. मंजरी का तो चलो छोड़ दो, उसका दिमाग खराब होता है. बाकी लोग का कहाँ, तुम लोग कहाँ बेच के खा जाते हो अपना सारा दीन? रिश्ते जगलिंग कर रहे हैं, वो जगलिंग बॉल्स होती ना, एक तरफ से दूसरा, दूसरे से तीसरा. Like literally they're living up to their names. Anyway, I'm done ranting about this show. Even I am done ranting. We are done ranting about Ye Rishta Kya Kehlata Hai. We will rant again next week. Take care.